हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ हेड एंड नेक एनाटॉमी जिसमें हम स्कैल्प एंड फेस वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है ये वॉल्यूम 3 का और स्कैल्प पे डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी रिलेटेड टू फेस। ओके, नाउ फेस और द countenance, the name for the face, yeah, facial expression, extends superiorly from the adolescent position of the hairline inferiorly to the chin and the base of the mandible, and on each side from side to side auricle is the boundary. तो ये face की boundaries हैं. So diagram पे कर देखें, so suppose this is the diagram, so this is the smaller version of the same diagram. So, face की limits क्या हैं? Lateral side पे this is the auricle, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी जो transverse range है, और vertical range इसकी है ये chin, इसका lower side mandible, और ऊपर है नेचुरल हेयर लाइन। नेचुरल हेयर लाइन का मतलब ये है, ऑब्वियसली इफ समबडी इज बाल्ड तो ये नहीं है कि उसका फेस पूरा कंटिन्यू कर रहा है, बट द नेचुरल हेयर लाइन इज समवेयर हेयर जिसमें फोरहेड भी शामिल है और ये सारा, सो दैट रीजन इज व्हाट वी एनाटॉमिकली कॉल एज फेस। ओके, सो फेस की डेफिनेशन कैन बी अ लिटिल सरप्राइजिंग। अगर एग्जाम में आपसे अचानक पूछ लें कि भाई फेस को डिफाइन करो, पता चले आप स्टक हो गए। सो आपको अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री और लेटरल बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। सो द अपर बाउंड्री इज द एडोलेसेंट हेयर लाइन, lower boundary is inferior to the chin and the base of the mandible, and on each side it is the auricle. Okay, therefore the forehead is included in face. Now, skin के बारे में कुछ important features हैं face के. The facial skin is very vascular. Now, this is an important point because इसकी blood supply काफ़ी rich है. It is highly vascular. तो अगर wounds होते हैं face पर, they rapidly heal. So wounds of the face bleed profusely, यानी इनमें bleeding भी काफ़ी होती है, but they heal very rapidly. Okay, the results of the plastic surgery on the face are therefore excellent for the same reason. Plastic surgeons, I mean, can go a little wrong in terms of their incision, तो scar नहीं होता, scar formation के बजाय usually they heal very very nicely. Reason उसका ये है because face skin particularly is very vascular. Okay, the facial skin is rich also in sebaceous and sweat glands. Sebaceous glands keep the face oily. I'm sure you may have noticed this कि after a while अगर face wash नहीं करते so it becomes oily, the skin, because of a lot of sebaceous glands, and it for the same reason is also a common cause of acne, boils, pimples in young adults. Okay, because there are so many sebaceous glands, they get blocked और acne form होता है, फिर उसमें infection हो सकता है, local infection, maybe because of a staph. So all these things are important for you to remember. Skin of the face also contains a lot of sweat glands. They help in regulation of the body temperature. So these are two important but easy points. Let's go over to the third point about the skin of the face. Laxity of the greater part of the skin facilitates rapid spread of edema. So the facial skin is very lax. इसका मतलब ये है कि इसकी elastic quotient जो है वो काफ़ी हाई है, इसीलिए इसमें एडिमा हो सकता है. ओके, रीनल एडिमा भी फेस पे अपीयर होता है. सो इफ द फेस बिकम मून शेप्ड और एडिमेरस और पफी, particularly around the eyelids, so that is an indication of edema, maybe because of renal cause or some other cause, but face की skin पे edema is very much visible. Okay, boils in the nose and ear are acutely painful due to fixity of the skin to the underlying structure. अब कुछ पॉइंट फेस पर ऐसे हैं जहां पर स्किन जो है वो टाइटली अटैच्ड है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से. फॉर एग्जांपल नेजल एरिया, एयर्स का एरिया, यहाँ पे जो अंदर कार्टिलेजेस हैं, अंदर जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं, उन पर स्किन टाइटली स्ट्रक्चर्ड है. अब चूंकि वो स्किन टाइटली बाउंड है, देयर इज नो मच स्पेस फॉर एक्सपेंशन, और चूंकि एक्सपेंशन नहीं होती तो अगर इन एरियाज पे बॉयल्स या पिंपल्स होते हैं तो वो काफ़ी पेनफुल होते हैं. बॉडी में ये जनरल प्रिंसिपल है कि कहीं भी अगर स्किन या कोई पार्ट लूज, फ्लैक्सिबल या वहाँ पे इनफ स्पेस नहीं है और वहाँ कोई मास ग्रो करता है तो वो इट बिकम्स वेरी पेनफुल. ओके, फेशियल स्किन इज ऑल्सो वेरी इलास्टिक एंड थिक, ये बात हम कर चुके हैं. द वुंड्स ऑफ द फेस देयरफॉर टेंड टू गेप. अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि फेशियल स्किन में काफ़ी सारे मसल्स अटैच होते हैं. अच्छा, दिस इज अनलाइक
many different parts of your body. हमारी बॉडी में मसल ऑब्वियसली इज अ डीप स्ट्रक्चर, यानी स्किन होती है, सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर डीप फेशिया होता है, फिर समटाइम्स देयर आर मेम्ब्रेन्स, फिर एक फैटी लेयर होती है, फिर कहीं जाके डीप टिश्यू के राफे बनते हैं, फिर उसके अंदर मसल. सो मसल इज यूजुअली वेरी वेरी डीप स्ट्रक्चर. लेकिन फेस में कहानी ऐसी नहीं है. फेस में मसल्स आर नंबर 1 सुपरफिशियल एंड नंबर 2 दे अटैच into the skin. और चूंकि स्किन में मसल अटैच होते हैं, हम बहुत सारे डायग्राम्स देखेंगे अभी. ऑल दीज मसल्स दे आर ऑल सुपरफिशियल मसल्स, दे आर नॉट डीप मसल्स. इसीलिए फेस के जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बनते हैं. अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में. जरा से फेस के मसल की ट्विचिंग, यानी फोरहेड का जो मसल है, अगर ये ट्विच करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ फोरहेड पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेंगी. अगर आपका प्रोसेरस मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ लाइंस बनेंगी. ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, आंखें जोर से बंद करेंगे, आंखें भींचना जिसे हम कहते हैं. सो यहां पर लाइंस आपको दिखेंगी. इसी तरह स्माइल करते हैं तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सीटी बजाते हैं तो ये मसल्स. सो ऑल दीज मसल्स आर सुपरफिशियल. ओके, एंड दे आर इंसर्टेड इनटू स्किन. तो अब होता ये है कि जब आप स्किन की किसी भी वजह से कोई कट लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं फेस पर, और अंडरलाइंग मसल कट कर देते हैं. सपोज अगर आप सर्जरी कर रहे थे फॉर व्हाटसोएवर रीजन और आपने ये मसल कट कर दिया, तो ये जो मसल है इसका ये पार्ट यहाँ रिट्रैक्ट कर जाएगा, ये मसल का पार्ट यहाँ रिट्रैक्ट कर जाएगा और यहाँ एक गैप बन जाएगा. तो इसीलिए ये जो पॉइंट लिखा है ये अब आपको समझ में आएगा कि फेशियल स्किन इज वेरी इलास्टिक, thick because of the facial muscles are inserted into it. The wounds of the face therefore tend to gape. gape का मतलब है उनके बीच में जगह बन जाती है, खड्डा बन जाता है. ओके, राइट. सो ये इंट्रोडक्शन हो गया स्किन के बारे में. अब बात करते हैं सुपरफिशियल फेशिया ऑफ फेस. ये अभी से बता दूं कि फेस के सुपरफिशियल फेशिया में ये नहीं है कि फैटी स्ट्रक्चर्स होंगे या फैट्स मिलेंगे, नहीं, मसल्स मिलेंगे. फेस के सुपरफिशियल फेशिया में इट कंटेन्स द फेशियल मसल्स. These muscles are all superficial and all of them are inserted into the skin. They all are inserted into the skin. ये unusual है. आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ऐसे मसल्स आपको बहुत ज़्यादा रूटीनली नहीं मिलते जो स्किन में जाके अटैच हों. ओके, सो दैट्स एन अनयूजुअल पॉइंट, इसीलिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर के व्हाट इज समथिंग सो स्पेशल अबाउट द फेशियल मसल्स. नंबर 1, they are present in the superficial fascia, and number 2, they are inserted into the skin directly. अच्छा जी, superficial fascia में there are also vessels and nerves like many other parts of the body. A variable amount of fat is also present. Fat is absent from the eyelids. Eyelids में there is no fat, but is well developed over the cheeks, forming the buccal pads that are very prominent in infants in whom they help in sucking. So बच्चों में buccal pads, cheek region में काफ़ी ज़्यादा fat होती है, adults में भी होती है. No fat in the eyelid region. Okay? ये सुनो यार, ये बड़ी मजे की बात आ रही है. Deep fascia is absent from the face except over the parotid gland where it forms the parotid fascia, and over the buccinator, it's the name of the muscle, where it forms the buccopharyngeal fascia. So पूरे फेस में डीप फेशिया नहीं है सिवाय दो रीजन्स के. दो रीजन्स ऐसे हैं जहां पर डीप फेशिया मौजूद है, और पहला रीजन है around the parotid gland और दूसरा है around the buccinator muscle. Again, because this is something very unusual. Usually आपकी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे there is superficial fascia, then there is deep fascia, लेकिन फेस में ऐसा नहीं है. फेस में there is superficial fascia but there is no deep fascia. Since there is no deep fascia, this becomes very very unusual and unroutine. अब ऐसा भी नहीं है कि 100% जगह पे डीप फेशिया नहीं है, दो जगहों पर है भी, और वो दो जगहें इसीलिए पूछी जाती हैं एग्जाम में कि फेस में डीप फेशिया कहाँ कहाँ होता है. आप जवाब देंगे जी हर जगह होता है. रॉन्ग आंसर. कहाँ होता है? पैरोटिड ग्लैंड के अराउंड और बक्सिनेटर के अराउंड. ओके, सो दिस पैराग्राफ इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेशियल मसल्स. फेशियल मसल्स में पहली तो बात जो मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं वो क्या है कि दे आर सबक्यूटेनियस मसल्स. सो दे आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन. सुपरफिशियल फेशिया में होते हैं, सबक्यूटेनियस होते हैं और स्किन में इंसर्ट होते हैं. सो सिंस दीज मसल्स आर इंसर्टेड इनटू स्किन, these bring about facial expressions. So these are secondarily also known as muscles of facial expression. These have small motor units. Now all this is very easy to understand कि important बातें क्या याद रखनी है. They are subcutaneous just below the skin. Number 2, they are inserted into the skin and they are also called muscles of facial expression. क्योंकि directly
स्किन में है ना, तो जो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक फेशियल पूरा एक्सप्रेशन बनेगा. ओके, एम्ब्रियोलॉजिकली दे डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म ऑफ द सेकंड ब्रेकियल आर्च एंड देयरफॉर सप्लाइड फ्रॉम द फेशियल नर्व. सो फेशियल नर्व अभी पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में आगे डिटेल में, इज द मेन नर्व ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस. मॉर्फोलॉजिकली they represent the best remnants of panicula's carnosus, a continuous subcutaneous muscle sheet seen in some animals. So not very relevant because there they always compare BDC or Fascia, they always compare it at times with lower animals, okay, but not so important for your exams and clinical practice. Topographically the muscles are grouped under the following 6 heads. अब वो जो 6 heads हैं anatomically टोपोग्राफिकली वो क्या हैं, वो ईजी हैं. फॉर एग्जाम्पल पहली कैटेगरी है मसल्स ऑफ द स्कैल्प. चूंकि ये स्कैल्प रीजन में है तो दे आर कॉल्ड मसल्स ऑफ द स्कैल्प. देन देयर आर मसल्स ऑफ द ऑरिकल नंबर 2, बिकॉज ये ऑरिकल में एयर के आसपास, कान के आसपास हैं, दे आर कॉल्ड मसल्स ऑफ द ऑरिकल. व्हाट इज नंबर 3? मसल्स ऑफ द आईलिड्स या ऑर्बिटल ओपनिंग के अराउंड जो मसल्स हैं, दैट इज द थर्ड कैटेगरी. सो चूंकि ये एनाटॉमिकली आईलिड्स के अराउंड हैं, दे आर कॉल्ड मसल्स ऑफ द आईलिड. ग्रुप नंबर 4 इज मसल्स ऑफ द नोज, ये नोज के अराउंड हैं. ग्रुप नंबर 5 इज मसल्स अराउंड द माउथ रीजन, ये माउथ के आसपास हैं. एंड देन वी हैव द सिक्स्थ ग्रुप व्हिच इज मसल्स ऑफ द नेक ऑब्वियसली. ओके, वो भी चूंकि अल्टीमेटली एंटर हो रहे होते हैं फेशियल कुछ एरियाज में, उसका कनेक्शन है. सो दीज आर द 6 anatomical या topographical representation of muscles of the face. अब ये तो याद रखना बहुत आसान है कि there are muscles in the scalp, there are muscles in the auricle. Functionally अगर इस बात को हम समझने की कोशिश करें, the most of these muscles, ये बहुत गौर से सुनो because ये important conceptual चीज बताने लगा हूं. Most of these muscles may be regarded primarily as regulators of 3 openings situated on the face. अब अगर आप अपने फेस को देखो तो यहाँ पर 3 openings कौन सी हैं? Number 1, there is opening which is the palpebral fissure. Palpebral fissure is basically the fissure of the eye, the nostrils यानी fissure of the nose and oral fissure. तो ये 3 openings हैं, 1, 2 and 3 जो आपके फेस में मौजूद हैं. I mean you can look in mirror and you will see this. So you have this opening which is the nasal opening, you have this opening which is the palpebral fissure which is closed here but open here, so that is second opening. And then we have the third opening which is this, the oral opening, oral cavity. So these openings, तीनों openings जो हैं, ये muscles अगर आप functionally इनको स्टडी करें, सारे जो muscles हैं प्राइमरीली इन 3 ओपनिंग्स की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं. ईच ओपनिंग यानी ये जो 3 ओपनिंग्स बताई हैं, आई, नोज एंड ओरल कैविटी, ईच ओपनिंग हैज अ सिंगल स्फिंक्टर लाइक मसल and a variable number of dilators. It's beautiful line. मैं इस लाइन को बहुत हाई रेट करता हूँ because ये आपको जनरल कॉन्सेप्ट बताता है. And I'm more sort of a general concept guy rather than कि मुझे 3 मसल्स के नाम बताओ जो कान के इर्द गिर्द होते हैं. And you have rectified them: auricularis anterior, auricularis superior and auricularis posterior. Oh my god, bloody hell. I'm more sort of conceptual person. So concept ये है कि जो भी ओपनिंग है, अब इन तीनों ओपनिंग्स को आप देखें, कॉन्सेप्ट ये है कि 3 मेजर ओपनिंग्स हैं फेशियल रीजन में, हर ओपनिंग के इर्द गिर्द एक स्फिंक्टर है. आई को देखें जी, दिस इज आई की ओपनिंग, उसके इर्द गिर्द जो स्फिंक्टर है उसका नाम है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ओपनिंग बंद हो जाएगी. अगर आप ओरल कैविटी को देखें तो ओरल कैविटी के इर्द गिर्द ये स्फिंक्टर है जिसका नाम है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस. ये था ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई. ऑक्यूलाई चूंकि आई के इर्द गिर्द था, ये चूंकि ओरल कैविटी के इर्द गिर्द है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ओरल कैविटी बंद यानी मुंह बंद हो जाएगा. सो इसी तरह नोज के इर्द गिर्द है. अब ये तीनों ओपनिंग्स का जनरल मैकेनिज्म है कि देयर इज अ स्फिंक्टर लाइक मैकेनिज्म. नोज ऑब्वियसली हर वक्त क्लोज नहीं होती है एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट, इसलिए ये एग्जांपल बहुत रेलेवेंट नहीं है. बट दीज 2 एग्जांपल्स, आई मीन देयर इज अ कंप्लीट स्फिंक्टर हियर एंड देयर इज अ कंप्लीट स्फिंक्टर अराउंड द ओरल कैविटी. और ये जो स्फिंक्टर्स हैं, दे आर ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई एंड ऑर्बिकुलरिस ऑरिस. सो देयर इज एटलीस्ट one good sphincter available and then there are so many dilators. Dilators क्या काम करेंगे? उसको ओपन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओरल कैविटी के इर्द गिर्द देखो तो ये मसल अटैच हो रहा है, ये वाला मसल. अब ये मसल, इसका नाम है ज़ाइगोमैटिकस माइनर.
फिर एक ये बड़ा सा मसल है विच इज कॉल्ड ज़ाइगोमैटिकस मेजर, इस साइड पर भी है। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ओरल कैविटी ओपन होगी। सो दीज आर डायलेटर्स। ये जनरल प्रिंसिपल है। आईज में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप यहाँ देखें, दिस इज ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, बट देन देयर इज दिस मसल अटैच्ड विच इज लिवेटर लबाई सुपीरियरिस, देन देयर इज दिस मसल अटैच्ड विच इज कॉल्ड ज़ाइगोमैटिकस माइनर, जिसके फाइबर्स यहाँ अटैच हो रहे हैं ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई में। सो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, आई विल ओपन। So there are so many dilators attached and at least one sphincter attached. ये आपके फेस के मसल्स का जनरल अरेंजमेंट है। ये अगर आपने बात समझ ली, I'll be happy। अब देखो, ये कॉमन सेंस है ना। ये मसल एक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें, लिप के लोअर रीजन में जो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस है उस पर जाके अटैच हो रहा है। तो अगर ये मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इट विल कॉन्ट्रैक्ट इन दिस डायरेक्शन, ओरल कैविटी विल ओपन। तो अब ये जो भी मसल, इसका नाम है डिप्रेसर लेबाई इंफीरियरिस, इसका काम है ओरल कैविटी को ओपन करना। सेम इज दिस मसल, whenever it will contract, the muscles will go down in this direction, oral cavity will open. अब इस मसल का नाम देखें क्या है। This muscle is called depressor anguli oris. So नाम दिखने में, सुनने में मुश्किल लग रहे हैं, बट अगर आप जनरल कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे तो बात आपकी समझ में आएगी। ओके, सो ये फेशियल जो मसल्स हैं, टोपोग्राफिकली तो आसान था, मसल ऑफ द स्कैल्प, मसल ऑफ द ऑरिकल, मसल ऑफ द आईलिड, लेकिन फंक्शनली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, कि देयर इज वन स्फिंक्टर अवेलेबल which is usually circular, and then there are some dilators available which are radial, यानी वो फैल जाते हैं ओपनिंग से निकल के। यानी if you look at the opening one more time, I'm spending some time here because this is coology time and it is worth spending some time here. So this is the opening here, ये sphincter हो गया। अब इससे रेडियली काफी सारे मसल्स एक्सपैंड कर रहे हैं। ये मसल निकल रहा है रेडियल 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 रेडियल, बाहर की तरफ जा रहा है। इन सब का काम है ओरल कैविटी को डायलेट करना। So there is a circular sphincter and there are so many radial dilators. Okay? राइट अब ये स्पेसिफिक नाम बताएंगे हर मसल का, कि स्कैल्प के मसल, ये मैंने स्कैल्प की वीडियो में पढ़ा दिए हैं, वहाँ देख लीजिएगा। ऑरिकल के जो मसल्स हैं वो एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर लोकेशन पे होते हैं। ऑरिकल को ऑरिकुलरिस कहा है, तो इसीलिए ऑरिकुलरिस एंटीरियर सुपीरियर पोस्टीरियर, इजी। मसल्स ऑफ द आईलिड क्या है? ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई है। देन देयर आर कोरिगेटर सुपरसिलियाई, जिसका काम है रिंकल करना आई की जो ऊपर आईलिड्स बनी हुई है ऊपर एंड नीचे। एंड देन देयर आर लिवेटर पल्पेरियास सुपीरियरिस, एन एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक फाइबर्स, and third cranial nerve. That's the speciality of levator palpebrae superioris. Muscles of the nose, procerus, compressor naris, dilator naris. What I would suggest कि इन सारे मसल्स के नाम आप पढ़ते जाओ और इनको लोकेट करो। अब फॉर एग्जांपल ये एक मसल आ रहा है, इस मसल का नाम है प्रोसेरस। अब आप डायग्राम में जाएं, इस डायग्राम में ढूंढे प्रोसेरस किधर है। ये रहा प्रोसेरस, दिस इज द प्रोसेरस, ठीक है। अब जरा इमेजिन करें इसका काम क्या होगा। जब कभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या इस नेजल ब्रिज पे कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ कोई ट्रांसवर्स स्किल लाइंस बनेंगी, फोरहेड पर कोई लाइंस बनेंगी? जरा इमेजिन करें। तो पहला स्टेप ये करो कि नाम देखो प्रोसेरस। दूसरा स्टेप ये करो, सो दिस इज स्टेप नंबर 1। ये सारे मसल्स के लिए मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ। मसल का नाम देखो, उसके बाद डायग्राम पे जाके देखो वो मसल किधर है। ये रहा स्टेप नंबर B, ये मसल यहाँ पर है, दिस इज स्टेप नंबर B, देख लिया। और अब आप सोचने की कोशिश करें कि ये मसल क्या काम करता होगा। अब स्टेप नंबर C, अब इस चार्ट पे जाओ और यहां ढूंढो वो मसल किधर है। दिस इज स्टेप नंबर C। सो हियर इज द मसल प्रोसेरस। अब देखो ये निकल कहां से रहा है। दिस इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नेजल बोन एंड अपर पार्ट ऑफ द लेटरल नेजल कार्टिलेज। वापस डायग्राम पे जाओ, देखो नेजल बोन से निकल रहा है। हाँ यार, यहीं से निकल रहा है, नेजल एरिया से निकल रहा है। अब देखो ये इस टेबल में बता रहा है इंसर्ट कहां होता है। इंसर्शन क्या है? इंसर्शन है स्किन ऑफ द फोरहेड और बिटवीन द आईब्रोज। इसी जगह पे देखो यहाँ ये इंसर्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। स्किन ऑफ द फोरहेड बिटवीन द आईब्रोज, ये आईब्रो इधर होगी, आईब्रो इधर होगी, उसके बीच में ये मसल यहाँ पड़ा हुआ है। तो ओरिजिन समझ लिया, इंसर्शन समझ लिया। अब जरा इसका काम देखें जी। व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द एक्शन? कॉजेस ट्रांसवर्स रिंकल्स, यानी यहाँ फोरहेड और ये वाली जगह पे जो ट्रांसवर्स रिंकल्स बनते हैं, यानी जब कोई बंदा ऐसा एक्सप्रेशन देता है ना, ऐसे ट्रांसफर रिंकल यहाँ पे बन जाते हैं, ऐसे रिंकल्स बन जाते हैं, तो ये रिंकल्स बनते हैं इस मसल की वजह से, ठीक है। तो ये आपने अब करना है काम हर एक सिंगल मसल के लिए। एक एग्जांपल और आपको बताता हूं, ठीक है। कोई भी मसल पिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस पिक दिस मसल ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। स्टेप नंबर 1 ये है कि मैंने मसल का नाम यहाँ देखा। स्टेप नंबर 2 ये है कि मैं डायग्राम में जाऊंगा और ढूंढूंगा ऑर्बिकुलरिस, कौन सा मसल ढूंढा था मैंने, ऑरिस था, ऑक्यूलाई था, ऑरिस। अब इस डायग्राम में मैं देखूंगा कि ऑर्बिकुलरिस ऑरिस किधर है। तो इस डायग्राम पे मुझे नजर आ रहा है कि जी ऑर्बिकुलरिस ऑरिस किधर है, किधर है, ये रहा, नहीं भाई नहीं मिल रहा, ये रहा ऑर्बिकुलरिस
ऑरिस। ये रहा ये मसल, ये पूरा मसल है। अब इस मसल का मैं सोचूंगा कि क्या काम हो सकता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो माउथ क्लोज होगा या ओपन होगा? क्लोज होगा। अब चलो भाई टेबल पे, स्टेप नंबर सी था ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, टेबल पे गए, स्टेप नंबर सी, ये रहा मसल का नाम। कहाँ से निकलता है? सुपीरियर इंसेसिव फ्रॉम मैक्सिला और मैंडिबल से निकलता है, एंगल ऑफ माउथ पे इंसर्ट होता है, स्किन में इंसर्ट होगा ऑब्वियसली। क्या काम करता है? क्लोजेस द लिप्स एंड प्रोट्रूड्स द लिप्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रिमेसेस बनाने में काम आता है। इट्स अ वेरी वर्सेटाइल मसल। मेजर फंक्शन ये है कि ये ओरल कैविटी को बंद करता है। सो इस तरह आपने हर मसल का नाम देखना है, उसका ओरिजिन इंसर्शन देख लो और उसका एक्शन देख लो। जनरल कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, प्रोसेसेस को समझोगे तो कभी भी मुश्किल नहीं होगी एनाटॉमी में। ओके, राइट। आगे चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। मसल्स की कहानी यहाँ पर खत्म। आप कोई भी मतलब आप फॉर एग्जांपल अगेन सेम फार्मूला, स्टेप नंबर 1, ए स्टेप क्या है? मैंने मसल का नाम यहाँ पे देखा, लिवेटर एंगुलाई ऑरिस, अराउंड दी ओरल कैविटी है। लिवेटर एंगुलाई ऑरिस को अब मुझे डायग्राम पे अगर लोकेट करना है तो लेट मी सी वेयर इज, ये रहा, यहाँ तो अलग से डायग्राम बताई हुई है, लिवेटर एंगुलाई ऑरिस। अब मैं स्टेप नंबर बी, मैं ये सोचूंगा कि ये मसल क्या काम करता है। चूंकि ये एंगल ऑफ माउथ पे लगा हुआ है तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑब्वियसली इट विल वाइडली ओपन दी एंगल ऑफ द माउथ। और अब आइए देखते हैं यहाँ वो मसल किधर है। लिवेटर एंगुलाई ऑरिस मैक्सिला से निकल रहा है, स्किन ऑफ द एंगल ऑफ माउथ पे अटैच हो रहा है और काम क्या करता है? एलिवेट्स द एंगल ऑफ माउथ फ्रॉम द नेज़ोलेबियल ग्रूव। यही डायग्राम में दिखा रहे हैं ना, एलिवेट्स द एंगल ऑफ माउथ। हर मसल विल मेक सेंस टू यू, दैट्स माई गारंटी, इफ यू स्टडी इट इन दिस वे। ओके, तो ये दोनों डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये वाली डायग्राम, ये वाली डायग्राम और ये डायग्राम एंड इंक्लूडिंग दिस डायग्राम. So all these three diagrams actually are very very important for you. Okay, so once you are done with the muscles, let us now talk about this very important heading. अच्छा, muscles of the neck जो है ये हम obviously जब neck पढ़ेंगे तो डिटेल में भी ये चीज़ डिस्कस होगी, लेकिन superficial muscle of neck जो है उसका नाम है platysma and there are obviously different triangles of neck, anterior posterior, उनके muscles and boundaries अलग हैं. neck के region में हम इसको डिस्कस करेंगे. ओके, अब ये जो नेक्स्ट यहां पर कुछ लाइंस बीडी चौरासिया में लिखी है ना, दे आर वेरी वेरी हाई यील्ड. डबल स्टार बना दो अभी से, यहां पे एक स्टार इधर एक स्टार इधर, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ अक्सर एग्जाम में भी पूछते हैं और यार ये इंटरेस्टिंग भी है, ये आपको खुद से भी इसमें ना इंटरेस्ट होना चाहिए कि कॉमन मसल्स कौन से हैं कॉमन एक्सप्रेशंस के लिए. यानी सरप्राइज लुक जब किसी बंदे के चेहरे पे आता है तो कौन सा मसल काम कर रहा होता है? फ्रंटालिस. डिसलाइक अगर आपको किसी को शो करनी होती है, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, कोरिगेटर सुपिला एंड प्रोसेरियस. एंगर अगर किसी पे गुस्सा आ रहा है तो डायलेटर नारिस एंड डिप्रेसर सब. मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने ये सारे 10-11 हेडिंग्स पढ़नी है और फिर ये डायग्राम देखनी है. वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल. इफ यू आर स्माइलिंग तो ये आपका फेशियल एक्सप्रेशन है. इफ अच्छा स्माइलिंग है तो फेशियल एक्सप्रेशन जाहिर है ऐसा होगा. और अब आपने वापस जाना है, देखना है भाई स्माइल के लिए मसल कौन सा काम करता है. सो स्माइल के लिए मसल काम करता है ज़ाइगोमैटिकस मेजर. अब ज़ाइगोमैटिकस मेजर इस डायग्राम में जाके देखें है किधर. ये रहा ज़ाइगोमैटिकस मेजर. स्माइल करते हैं तो ये यूं कॉन्ट्रैक्ट करेगा, थोड़ा थोड़ा सा लिप्स को साइड से एंगल से ऊपर करेगा और आपका चेहरा कुछ ऐसा दिखेगा. ये यूं ऊपर हो गया है रीजन. तो कौन सा मसल यहाँ पे था? ज़ाइगोमैटिकस मेजर. स्माइलिंग के लिए ज़ाइगोमैटिकस मेजर इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज हाउ. फिर नेक्स्ट डायग्राम ये वाली देखो, सैड फेस. सैड फेस में कुछ फरोज यहाँ बन गए, कुछ यहाँ पे नेज़ोलेबियल फोल्ड्स जो हैं ये थोड़े से प्रोमिनेंट हो गए. एंगल ऑफ माउथ थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, चुन्ना मुन्ना नीचे हो गया. सो सैड फेस. अब जाके यहाँ देखो सैड फेस कौन सा मसल काम कर रहा है? सैड 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 किधर है भाई? ये रहा सैड. लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस, लिवेटर एंगुलाई ऑरिस. डायग्राम में देखो मसल किधर है, क्या काम करते हैं. सो दिस इज वेरी वेरी हाई यील्ड. इफ यू डिसलाइक समवन, ऐसा होना मुझे नहीं पसंद यार, तू वो चला जाए यहाँ से, ये मसल्स काम कर रहे हैं, ये मसल्स काम कर रहे हैं, यहाँ मसल्स काम कर रहे हैं. ऊपर जाके देखें कौन से मसल्स हैं. व्हेन यू आर सरप्राइज, सरप्राइज, ये मसल यहाँ जो भी मसल हैं वो माउथ को वाइड ओपन कर रहे हैं. आईज आर वाइड ओपनिंग, यू सी, आईज आर वाइड ओपनिंग. और यहाँ पे फरोज बन रहे हैं. ये सारे मसल्स काम करेंगे. सरप्राइज लुक में एक्चुअली बहुत सारे मसल्स काम कर रहे हैं. फ्रंटालिस फॉर एग्जाम्पल इज वन ऑफ दैम. But there are so many other muscles. Now you try to figure out कि जो मुंह खुल गया है
इसमें कौन कौन से मसल्स होंगे? एक्चुअली इस स्फिंक्टर के अलावा, यानी जो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस था उसके अलावा बाकी सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, इसी तरह से फ्राइट, डरने वाली सिचुएशन, सीटी मारे, वो कहते हैं ना सीटी मारे, इस पर तो बहुत सारे इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग्स भी हैं यार। सो विस्लिंग, सीटी, और यहाँ कौन कौन से मसल्स यूज हो रहे हैं? गो गो गो, गो गो गो, whistling and kissing, buccinator and orbicularis oris. These are the major muscles which are being used. Interesting है ना? ये डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। आप आज के बाद जब कभी किसी को सीटी मारते हुए देखें तो उसे जाके कहें कि हेलो ब्रो, यस यस, आपका बक्सिनेटर मसल काम कर रहा है और आपका ऑर्बिकुलरिस ऑरिस काम कर रहा है। उसने हंसना है, उसने बोला बस क्या आप बोल रहा है, दिमाग की दही मत कर यार। बट यस, दिस इज हाउ मेडिकल स्टूडेंट इज। आपको इसी तरह से चीजें याद होंगी जब कभी आप मुस्कुरा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ये लेक्चर सुन के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है तो ज़ाइगोमैटिकस मेजर काम कर रहा है। अगर आप मेरा लेक्चर सुन के सैड है, नहीं यार सैड क्यों होंगे, मेरा लेक्चर सुन के डिसलाइक, मेरा लेक्चर डिसलाइक भी नहीं करेंगे आप। हाँ, सरप्राइज जरूर हो सकते हैं कि इतना अच्छा लेक्चर, तो अपने आप से पूछिए कि कौन से मसल्स आपके चेहरे पे काम कर रहे हैं। डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे लेक्चर्स को सुन के यार, आई एम अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। विस्लिंग, हाँ सीटी मार सकते हैं खुश होकर मेरे लेक्चर्स को सुन के। सो व्हेनेवर यू डू दीज थिंग्स, या इफ यू सी समबडी डूइंग दिस, जो कि रोज देखते हैं आप, किसी न किसी को डरा हुआ देखते हैं, किसी न किसी को खुश देखते हैं, किसी न किसी को सैड देखते हैं, तो जरा अपने दिमाग में रिवाइज करें कि उनके कौन से मसल्स एक्चुअली काम कर रहे हैं। ओके, लेट अस नाउ टॉक अबाउट व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ योर ब्यूटीफुल फेस। अब किसी भी रीजन की जब हम नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ मोटर कंपोनेंट टू इट, यानी कि जो मसल्स हैं वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंड देन देयर इज अ सेंसरी कंपोनेंट टू इट, यानी वहाँ उस एरिया में जो भी सेंसरी फीलिंग्स हैं वो किस पाथवे के जरिए या किस तरह से वो कंडक्ट होती हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो लेट अस डिस्कस कि फेस की मोटर सप्लाई क्या है। वी ऑल नो कि फेस की मोटर सप्लाई इजी, फेशियल नर्व इज द मोटर नर्व ऑफ द फेस। इट्स 5 टर्मिनल ब्रांचेस, ये इंटरेस्टिंग है, टेम्पोरल, zygomatic, buccal, marginal mandibular and cervical. They emerge from the parotid gland and diverge to supply various facial structures. For example, the temporal branch supplies the muscle frontalis, auricular muscles, जो 3 muscles auricle के इर्द गिर्द थे, and orbicularis oculi. So that is supplied by the temporal branch of facial nerve. The zygomatic branch is actually supplying and taking care of the orbicularis oculi का lower eyelid का part, and the buccal branch is supplying the muscles of the cheek and the upper lip, marginal mandibular muscles of the lower lip, and cervical muscles of the platysma. तो ये easy to understand stuff है, but ये 5 branches important है. In fact, the branches of the facial nerve can be simulated by putting your right wrist on the right ear and spreading 5 digits. Thumb over the temporal region, index finger on the zygomatic bone, middle finger on the upper lip, ring finger on the lower lip, and little finger over the neck. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ। वाह वाह वाह, easy busy stuff. अगर आप अपने हाथ को ऐसे रखें कान के ऊपर, इसको ऐसे फैला दें, तो थंब आपका जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, it is actually indicating, it is representing temporal branch. So this basically is the facial nerve और ये उसकी है temporal branch. You see, इसी तरह है ना, ये आपका हाथ और ये temporal branch. This is indicating zygomatic. This is indicating buccal branch. This is indicating marginal mandibular, and this is indicating cervical branch. 5 branches, and you can easily remember them like this. ये इनकी muscular territory है for the motor supply. चीज़ों को कनेक्ट किया करो यार, कनेक्ट ऐसे किया करो। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये वाला जेस्चर बना रहे हैं तो ज़ाइगोमेटिकस मेजर यूज़ हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्माइलिंग में कौन सा मसल यूज़ होता है, वो मसल ओरिजिनेट कहाँ से करता है, इंसर्ट कहाँ करता है, उसका एक्शन क्या है, और उसको कौन सी ब्रांच सप्लाई कर रही है। सो दैट इज द होल स्टोरी। एनाटॉमी ऐसे पढ़ोगे तो देर तक याद रहेगी और एग्जाम में यू विल क्रैक इट ब्रो। आप बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आएंगे, ओके। लेकिन ऐसे रूखी सूखी एनाटॉमी पढ़ेंगे, ऐसे याद करने की इसको कोशिश करेंगे, घंटा नहीं काम करना इस टेक्निक ने, ओके। अच्छा भाई, अब कुछ क्लिनिकल बात है।
क्लिनिकल बात है इंपॉर्टेंट। हो कुछ सेक्सी डायग्राम्स। लेट्स सी के ये जो ब्यूटीफुल क्लिनिकल एनाटॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं इसको मास्टर करते हैं। द फेशियल नर्व इज एग्जामिन्ड बाय टेस्टिंग द फॉलोइंग मसल्स। इफ यू हैव टू एज अ क्लिनिशियन चेक द फेशियल नर्व, so you check the frontalis by asking the patient to look upward without moving his head, यानी ये वाला gesture है to check frontalis muscle। और जब आप frontalis muscle चेक कर रहे हैं तो बेसिकली आप कौन सी ब्रांच चेक कर रहे हैं फेशियल नर्व की, दैट इज द टेम्पोरल मसल, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। ओके, सो फ्रंटालिस को इस तरह से चेक किया जाता है, आस्क द पेशेंट टू लुक अपवर्ड विदाउट मूविंग द हेड अप। इफ यू हैव टू चेक द डायलेटर्स ऑफ द माउथ, शो द टीथ, दांत दिखाइए। अगर पेशेंट का मुंह सही से खुल रहा है, दांत ठीक से दिखा रहा है, तो इसका मतलब उसके डायलेटर्स बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई चेक करना है, आस्क द पेशेंट टू टाइटली क्लोज द आईज, आंखें बंद करो जोर से। बक्सीनेटर, puffing the mouth and then blowing forcefully as in whistling। so आपसे कहते हैं कि मुंह फुलाओ, हवा भर ली, फिर उंगलियों से उस हवा को निकाल दो। so you can see that this is the test for buccinator muscle। okay, now look here, that's very important। facial nerve की जो palsy है, एग्जाम में ये बहुत पूछते हैं, मेडिसिन के स्टेशंस में भी और पैथोलॉजी में भी और ऑब्वियसली एनाटॉमी में भी। बेल्स पाल्सी, ये नाम शायद आपने सुना भी हो, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इसको देखते हैं। अब जो फेशियल नर्व है इसका देर इज़ अ न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, और वो जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस से ऊपर अगर लीजन है यानी हायर सेंटर्स में तो उसे हम कहते हैं सुप्रा न्यूक्लियर लीजन, और अगर उस न्यूक्लियस से नीचे लीजन है यानी लोअर नर्व फाइबर्स में तो उसे हम कहते हैं इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन। सो इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन ऑफ द फेशियल नर्व at the stylomastoid foramina is known as Bell's palsy। Upper and lower quarters of face on the same side get paralyzed, यानी जिस जगह लीजन है उसी साइड का अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द फेस जो है वो डैमेज हो जाता है। द फेस बिकम्स asymmetrical and it's drawn up on the normal side, यानी जो नॉर्मल साइड होगा उस पे जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो वाला पार्ट फेस का ऊपर। ये सारी बात अभी डायग्राम पे समझाता हूँ, थोड़ा मजीद डिटेल से पहले पढ़ा दूँ। द अफेक्टेड साइड यानी जिस जगह पे लीजन हुआ है इज बेसिकली मोशनलेस, उसमें कोई मोशन नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती। कैसे होगी? नर्व फाइबर्स जो है वो डैमेज हो गए, रिंकल्स डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि मसल सप्लाई नहीं हो रहे, आई कैन नॉट बी क्लोज्ड, आंखें बंद नहीं होती क्योंकि मसल काम नहीं कर रहा है। एनी अटेम्प्ट टू स्माइल ड्रॉज द माउथ टू द नॉर्मल साइड, क्योंकि नॉर्मल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अफेक्टेड साइड वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, तो माउथ जो है वो नॉर्मल साइड की तरफ चला जाता है। ड्यूरिंग मैस्टिकेशन मसला होता है, आर्टिकुलेशन ऑफ द लेबियल्स इज इम्पेयर्ड, आँखें जो हैं उसमें से आंसू बहते रहते हैं, टीयर्स फ्लो आउट बिकॉज ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई जो है उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, सलाइवा बहती रहती है बिकॉज एंगल ऑफ माउथ क्लोज नहीं हो रहा होता। सो इफ यू लुक एट द डायग्राम, सो दिस इज द डायग्राम शोइंग बेल्स पैल्सी। सो ये है स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन जहाँ पे कॉमनली फेशियल नर्व कैन बी कंप्रेस्ड। अब अगर ये यहाँ पे इस एरिया पे कंप्रेस होगी फेशियल नर्व, तो जो भी इसकी सप्लाई वाली टेरिटरी है विच इज़ दी फेस को अगर 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करें एक मिडल लाइन और यूं करके, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। सो यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है तो इसी साइड का अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट डैमेज हो गया, यानी अब ये आई के मसल सप्लाई नहीं हो रहे, ये मसल सप्लाई नहीं हो रहे, एंगल सप्लाई नहीं हो रहा, ये सब कुछ सप्लाई नहीं हो रहा। आप इस पेशेंट से कहें आंखें बंद करो तो ये वाली आंख बंद हो जाएगी नॉर्मल साइड की, ये वाली आंख बंद नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई काम नहीं कर रहा। आप पेशेंट से कहो स्माइल करो तो यहाँ स्माइल वाला फीचर बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ से सलाइवा ड्रिबल होगी, यहाँ से लैक्रिमल ग्लैंड्स टीयर्स निकलते रहेंगे। सो द एबनॉर्मल साइड इज द साइड ऑफ द लीजन, वो पूरा फेस का जो हाफ है, हाफ ऑफ द फेस इज डैमेज। इस तरह की अगर पिक्चर है, सो दिस इज इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन। ओके, फिर दूसरा जो लीजन है फेशियल नर्व का, दैट इज कॉल्ड सुप्रा न्यूक्लियर लीजन। सुप्रा न्यूक्लियर लीजन जो है यूजुअली इट इज पार्ट ऑफ द हेमिप्लेजिया, बिगर पिक्चर होती है हेमिप्लेजिया की जिसमें और भी एनाटॉमिकल फीचर्स दिखते हैं। विद इंजरी ऑफ कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स ओनली द लोअर, ये सुनो गौर से, only the lower quarter of the opposite side of the face is paralyzed। बेल्स पाल्सी में सेम साइड, यानी अगर राइट साइड पे डैमेज हुआ है तो राइट फेस गड़बड़ करेगा, लेकिन
जो सुप्रान्यूक्लियर लीजन है उसमें अपोजिट साइड पे गड़बड़ होगी, वो भी सिर्फ लोअर हाफ में. नाउ द अपर क्वार्टर विद फ्रंटालिस एंड ऑर्बिटलिस दे escape due to bilateral representation of the cerebral cortex. Only the voluntary movements are affected and emotional expression remain normal as they have separate fibers. Now look at this diagram for example. So this is the higher cortex, higher cerebral cortex, higher centers हैं ये, जहाँ से fibers originate करते हैं और ये originate करके डिकसेट करते हैं. आप जरा देखें, अगर मैं आपसे पूछूं, सपोज दिस इज द राइट साइड ऑफ द फेस, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द फेस, राइट साइड पे जो मोटर सप्लाई आ रही है वो राइट कॉर्टेक्स से आ रही है या लेफ्ट कॉर्टेक्स से आ रही है? ऑब्वियसली दोनों तरफ से आ रही है, क्योंकि कुछ फाइबर्स यहाँ से आ रहे हैं राइट साइड से, वो भी सप्लाई कर रहे हैं अपर पार्ट को. तो जो अपर पार्ट है उसमें राइट साइड से भी सप्लाई है और लेफ्ट साइड से भी फाइबर डिकसेट करके अपर पार्ट को सप्लाई कर रहे हैं. सो जो अपर पार्ट है दिस इज बीइंग सप्लाइड फ्रॉम बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड. तो अगर लेफ्ट साइड पे इंजरी होती है अपर पार्ट ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा, क्योंकि उसे राइट साइड से सप्लाई मिल जाएगी. लेकिन जो लोअर हाफ है, लोअर हाफ ऑफ द फेस इज सप्लाइड ओनली बाय द कॉन्ट्रालेटरल पार्ट. यानी अगर लेफ्ट साइड पे यहाँ हायर सेंटर्स पे डैमेज होगा तो सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट फेस डैमेज हो जाएगा, यहाँ पे मसल्स काम नहीं करेंगे, अपर पार्ट ठीक रहेगा, क्योंकि अपर पार्ट पे डुअल सप्लाई है, राइट साइड से भी आती है लेफ्ट साइड पे. यू सी द डायग्राम हियर, राइट साइड से ये सप्लाई आई, यहाँ पे सप्लाई कर रही है, और लेफ्ट साइड से भी यहाँ पे आई और यहाँ पे सप्लाई कर रही है. तो लेफ्ट वाला फाइबर डैमेज हो गया, नो प्रॉब्लम, राइट वाला तो ठीक है ना अपर हाफ के लिए. लेकिन लोअर हाफ को जरा देखो, लोअर हाफ में सिर्फ यहीं से सिग्नल आ रहा है अपोजिट साइड से. तो अगर ये साइड डैमेज हुआ लेफ्ट साइड का, राइट साइड ऑफ द फेस लोअर हाफ गया, और अगर राइट साइड पे डैमेज होता तो लेफ्ट साइड वाला ये पार्ट जाता. ओके, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सुप्रान्यूक्लियर, न्यूक्लियस से ऊपर, एंड इंफ्रान्यूक्लियर, न्यूक्लियस से नीचे. बेल्स पैल्सी में हाफ ऑफ द फेस गॉन, ओके, और सेम साइड ऑफ लीजन, जबकि सुप्रान्यूक्लियर लीजन में ओनली द कॉन्ट्रालेटरल लोअर पार्ट. भाई बात सुने, ये पार्ट वीडियो का ना रोक रोक के बार बार देखें, बिकॉज ये एग्जाम के लिए इट्स डैम इम्पॉर्टेंट. ओके, अच्छा, सेंसरी सप्लाई जो है फेस की, दैट इज वाया द ट्राइजेमिनल नर्व, जिसकी फिर मेजर ब्रांचेस हैं. ऑल्सो ये इन्होंने एक टेबल बड़ा अच्छा दिया हुआ है कुटेनियस सप्लाई ऑफ फेस का, कि there is ophthalmic division of the trigeminal nerve, there is maxillary division of the trigeminal nerve, there is mandibular division. तो ये तीन divisions हैं trigeminal के, and then there is cervical plexus. Further उसकी fine detailed branches दी हुई हैं कि ophthalmic division जो है उसमें there is supratrochlear, supraorbital, lacrimal, infratrochlear. This is huge data set for you to remember. मैं ये रेकमेंड नहीं करता एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इसको एक एक नर्व का नाम याद रखना, बट दिस इज़ व्हाट आई रेकमेंड वेरी वेरी स्ट्रांगली. ओके, सो ये डायग्राम आपको पता होनी चाहिए. ट्राइजेमिनल की तीन ब्रांचेस हैं, 1, 2 and 3, और ये तीनों ट्राइजेमिनल नर्व्स के ड्रामाटोम्स आपको डायग्राम में इजीली दिखाए हुए हैं. सो यू शुड एक्चुअली रिमेंबर दिस डायग्राम. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द क्लिनिकल एनाटॉमी. ऑब्वियसली ये सेंसरी एरिया है, सो इट इज़ एसोसिएटेड विद सेंसेशन ऑफ पेन. ट्राइजेमिनल की किसी भी ब्रांच और टेरिटोरियल सप्लाई में अगर कोई भी इरिटेशन होगी, दैट विल बी कंसिडर्ड ऑल्सो एज हेडेक. सो हेडेक का मतलब सिर्फ हेडेक एक्चुअली नहीं है कि हमेशा मेनिंजेस डिस्टर्ब हुई हुई हैं. एनी सेंसरी सप्लाई टू द फेस रीजन बिकॉज ऑफ द कॉमन सेंसरी इनपुट. यार ये बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे जब न्यूरो एनाटॉमी कर रहे होंगे, ठीक है? अभी अगर सर पे से गुजर रही हैं तो बेयर विद मी. तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जी द सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एक्सप्लेन्स व्हाई headache is uniformly common symptom involvement the nose paranasal sinuses, क्योंकि हेड रीजन को ही सप्लाई कर रही है ना ट्राइजेमिनल, और ट्राइजेमिनल ही की बाकी भी सारी ब्रांचेस हैं. तो अगर यहाँ पर भी कोई मसला होगा तो वह हेडेक के तौर पे परसीव होता है, ठीक है? कोलेटरल पेन, रेफर्ड पेन. नाउ ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर जिसमें there is burning sensation, scalding sensation along the divisions of the trigeminal nerve, और फिर इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज होती हैं. आपको पता है सलमान खान ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम इन वन ऑफ द इंटरव्यूज ही मैंशनड. फिर इसका ट्रीटमेंट है आइदर यू इंजेक्ट 90% ऑफ अल्कोहल इन द अफेक्टेड डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, या गैंग्लिया में, या सेक्शनिंग करते हैं नर्व की. ओके, सो ओवरऑल पूरी स्टोरी का क्रक्स ये है सेंसरी सप्लाई का. रिमेंबर दिस डायग्राम. ओके, नाउ arteries of the face is, मैंने आपको बताया, highly vascular. It is supplied by number 1 facial artery, number 2
transverse facial artery, and number 3, arteries that accompany the cutaneous nerves, which are small branches of ophthalmic, maxillary. So ये triple arterial supply system आपको पता होना चाहिए. Okay, facial artery इनकी थोड़ी details दी हुई हैं. Facial artery is the chief artery of the face. It is a branch of the external carotid artery given off in the carotid triangle, just above the tip, the level of the tip of the greater corona of the hyoid bone. In its cervical course, it passes through the submandibular region, finally enters the face. So, if you look here, this is the external carotid artery, and from the external carotid, you have this tortuous facial artery. Okay, so that is the main supply arising from the external carotid to the face. कोर्स क्या है? इट एंटर्स द फेस बाय वाइंडिंग अराउंड द बेस ऑफ द मैंडिबल के नीचे. कोर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1.25 सेंटीमीटर, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. द आर्टरी इज वेरी टॉर्चुअस. द टॉर्चुosity ऑफ द आर्टरी प्रिवेंट्स इट्स वॉल फ्रॉम बीइंग unduly stretched during movements of the mandible, the lips, and the cheek. It lies between the superficial and the deep muscles of the face. The course of the artery in the neck is described elsewhere, so not part here. And the branches are inferior labial to the lower lip, superior labial to the upper lip and anterior-inferior part of the nasal septum, lateral nasal to the ala and dorsum of the nose, and posterior branches are very too much in number, small and unnamed. So if you look at the artery here, the main story is कि this is the external carotid जिसमें से facial artery निकल रही है. Hardly tortuous, टेढ़ी मेढ़ी है, देखें यूं है, स्ट्रेट आर्टरी नहीं है. उसका रीज़न है यार, क्योंकि मैंडिबल काफ़ी मूव करता है ना, सारी ज़िंदगी खाते पीते रहते हैं, चबाते हैं चीज़ों को, च्यूइंग करते हैं, तो मैंडिबल मूव करता है. स्ट्रेट आर्टरी होती तो उसका मसला होता है. ठीक है, उसकी डायनामिक्स, उसकी एनाटमी, फिजिक्स मेंटेन नहीं रहती, तो इसलिए नेचर हैज प्रोवाइडेड दिस टू बी वेरी वेरी टॉर्चुअस. ब्रांचेज इसकी कौन कौन सी निकल रही हैं? सुपीरियर एंड इंफीरियर लेबियल आर्टरीज, upper part of the lip and lower part of the lip, and then the nasal artery जो ala angular artery, ala and upper part of the nose को supply करती है. And there are also many small arteries also. Okay, anastomosis, the large anterior branches anastomose with similar branches on the opposite side. यानी right side की जो branches हैं वो left side की branches के साथ anastomose करेंगी. Small posterior branches anastomose with the transverse facial and infraorbital arteries. At the median angle of the eye, the terminal branches of the facial artery anastomose with the branches of the ophthalmic artery. This is therefore a site of anastomosis between branches of the external carotid and internal carotid. Facial artery किसकी branch है? External carotid की. Ophthalmic artery किसकी branch है? Internal carotid की. Anastomotic site. ओके, सो 3 आर्टीरियल मैंने जो आपको सप्लाईज बताई थी उसमें से फेशियल आर्टरी वी हैव डिस्कस्ड. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी. और तीसरा इज नॉट रिटन इन डिटेल बिकॉज दीज आर स्मॉल ब्रांचेस फ्रॉम ऑप्थैल्मिक एंड मैक्सिलरी, बट ट्रांसवर्स फेशियल इज वर्थ नोइंग बिकॉज लुक एट द डायग्राम हियर. दिस इज ट्रांसवर्स फेशियल जो बेसिकली सुपरफिशियल टेम्पोरल की ब्रांच है. सो दिस इज सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी again from the external carotid system, and transverse facial is emerging from superficial temporal. Okay, so the transverse facial जो artery है is a small branch coming out from the superficial temporal artery. After emerging from the parotid gland, it runs forwards over the masseter muscle between parotid duct and zygomatic arch, accompanied by the upper buccal branch of the facial nerve, supplies the area of parotid gland and its duct, masseter, and the overlying skin, and it anastomosed by the neighboring arteries. So that's all about the transverse facial that you have to remember. Okay, now veins of the face accompany the arteries. जो arteries हमने discuss की जितनी भी the facial artery, the transverse facial उसी के accompanying veins हैं, like in any other part of your body. Okay, and they ultimately drain into common facial and retromandibular veins. They communicate with the cavernous sinus. That's an important thing. और ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर फेस पर कोई भी इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल देयर आर पिंपल्स, एक्नी, एनी सेलुलाइटिस, तो फेस के एरिया पर अगर वो इन्फेक्शन है, सो इट कैन बी ड्रेन्ड बैक एंड कम्युनिकेट बैक विद द cavernous sinus, तो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो सकती है. इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू. Okay, the facial vein is the largest vein of the face with no valves in it. ये और important बात हो गई.
अब देखो बात ये है कि लेट मी फाइंड द डायग्राम, वेयर इज इट? सो इफ यू क्विकली हैव अ लुक एट दिस डायग्राम, सो दिस इज द फेशियल वेन which is a long vein. This was the W thing that they are talking about down there, not so important, but anyways, angular vein continuing down is the facial vein, ultimately draining into the internal jugular. Okay, और क्या क्या branches और tributaries इसमें drain कर रही हैं? You can see here there is a deep facial vein coming up down here, or via the deep facial vein there is a common facial vein and emissary vein, and this emissary vein is important because it is then the connection with the cavernous system. You see the cavernous sinus here. So any infection in the facial region, because यहाँ पे valves नहीं हैं, they can be tracked back to the cavernous system, और cavernous sinus की अगर thrombosis हो जाती है, so that's a serious issue. Okay, and then you see the maxillary vein here, superficial temporal. So the venous drainage is actually as the arteries were reaching out, वही backflow है veins का. Facial vein is the longest one, receiving some tributaries and being connected to the cavernous system. That's the important thing to remember. Okay, so the facial vein is the largest vein on the face, okay, with no valves in it. Valves नहीं है. It begins as the angular vein at the median angle of the eye. अभी हमने ऊपर देखा. It is formed by the union of the supratrochlear, supraorbital veins. The angular vein continues as the facial vein. It crosses the, this is not so important, but anyways, other veins also, there are deep connections as well, or deep connections हैं. Communication between the supraorbital and superior ophthalmic veins, और डीप फेशियल वेन ऊपर अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, एंड देयर आर इमिशरी वेन्स एंड देयर आर कनेक्शंस विद द कवर्नस साइनस एज वेल. और वो जो कनेक्शन है कवर्नस साइनस का, उसका फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है. फेशियल वेन से ब्लड जाता है डीप वेन में, और वहाँ से टेरिगोइड प्लेक्सिस, इमिशरी वेन, और इमिशरी वेन से इनटू द कवर्नस साइनस. एंड that is, guys, I'm telling you, clinically very important, because particularly एक area designate हम करते हैं मेडिसिन में, that area जिसमें ये नोज का एरिया, चीक्स का कुछ एरिया, अपर लिप का एरिया, it is actually called dangerous area of the face. अगर इस रीजन में आप किसी भी बच्चे में या किसी एडल्ट में अगर आप देखें बहुत सारा इन्फेक्शंस मटेरियल, बॉइल्स हैं, पिंपल्स हैं, एक्नी हैं, always be very careful, because this is the area जो डायरेक्टली ड्रेन कर सकता है आपके कवर्नस साइनस में, थ्रोम्बोसिस हो सकती है. सो दैट इज कॉल्ड द डेंजरस एरिया ऑफ द फेस. ओके, नाउ फेशियल वेन एंड इट्स डीप कनेक्टिंग वेन्स आर डिवॉइड ऑफ वैल्व्स. चूंकि वैल्व्स नहीं है इसीलिए डायरेक्टली सारा का सारा कैवर्नस साइनस में जा सकता है, थ्रोम्बोसिस करवा सकता है इन्फेक्शियस मटेरियल. तो वेनस ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है फेस की. ओके, अब लिम्फेटिक्स की बात करो. There are 3 lymphatic territories. There is an upper territory including the greater part of the forehead, blah blah blah. अभी दिखाता हूँ, डायग्राम ज़्यादा आसान है. There is a middle territory. अच्छा, अपर टेरिटरी ड्रेन करती है किस एरिया को, वो पता होना चाहिए, और किन लिम्फ नोड्स में करती है, प्री ऑरिकुलर में जो कि कान के सामने होते हैं. फिर मिडल टेरिटरी किन एरियाज को ड्रेन करती है और कहाँ ड्रेन करती है, सब मैंडिबुलर में. एंड देन देयर इज अ लोअर टेरिटरी व्हिच ड्रेन्स इनटू द सबमेंटल लिम्फ नोड. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, here there is a colored representation of different territories. So for example, territory number A is the draining area into the preauricular nodes. Okay, so that is the upper territory. Then there is the middle territory, yellow, it drains into submandibular, and then there is this inferior territory which drains into submental. Important diagram, guys. Right, now labial, buccal and molar mucus glands. So there are some mucus glands. We are not interested right now because this is something we are going to discuss in histopathology. Face is done and dusted, so we are good with the facial anatomy. very important lecture, guys. बार बार सुनिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.